Assalamu alaikum students. Welcome in the class of Inorganic Chemistry 2. So we are studying complexes of pi acceptor ligands, and in this scenario today we are going to discuss about application of metal carbonyls. We will discuss its part 2. Basically in part 1 we have discussed about the application of metal carbonyls in organic synthesis, and in this lecture we will discuss about some of the more aspects of metal carbonyls in organic synthesis, and after that we will discuss about industrial usage of metal carbonyls. So the fifth use of metal carbonyl in organic synthesis is formation of specific functional groups. Metal carbonyls have been used in a number of cases to synthesize organic molecules containing a particular functional group. ठीक है, अब इसकी एग्जांपल में आपके पास ये देखें, फॉर एग्जांपल अगर हम एक मीथेन का मॉलिक्यूल लेते हैं और उस मीथेन में से दो हाइड्रोजन हम ये दो क्लोराइड के एटम से और बाकी दो हाइड्रोजन हम ये दो फिनाइल के हाइड्रोजन से रिमूव कर दें, देन वी विल गेट दिस मॉलिक्यूल. And when we treat this species with CO2, CO8, we will get this molecule, which is actually 1122 tetraphenyl ethene. Basically this is the structural formula of this molecule. So you can see 1122 tetraphenyl ethylene, which is the molecular formula is here, and this is the structural formula. Then we get 8CO plus 2COCl2. Okay, then we have C6H5X. For example, we can say this molecule if we consider X as chlorobenzene. It will treat with nickel tetracarbonyl, and this will result in the formation of this molecule, which is called as benzyl. तो ये बेंजिल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, एंड दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला in which you can see we have this phenyl group here, then CO group, then again CO group, and this is C6H5 again. Then we have nickel halide plus two molecules of carbon monoxide. So in organic synthesis we can formulate special functional groups by the use of metal carbonyls. Then we have homogeneous hydrogenation catalysis. Metal carbonyl complexes are generally soluble in organic solvents. Metal carbonyl complexes can act as homogeneous catalyst. ठीक है, ये homogeneous catalyst के तौर पर act कर सकते हैं. For example, CO2, CO8 in presence of hydrogen and carbon monoxide reduces aldehydes to alcohols. अब एक्चुअली हाइड्रोजन अगर गैशियस फॉर्म में है तो ये भी गैशियस फॉर्म में ही होगा, तभी ये मतलब होमोजीनियस कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट कर पाएगा. इसी तरह ना सिर्फ ये कि हम एल्डिहाइड्स और अल्कोहल्स को रिड्यूस कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CO2, CO8, ठीक है, इसके अलावा हम आइमाइंस, नाइट्राइल्स, नाइट्रोअल्काइल्स, दे कैन आल्सो बी रिड्यूस्ड obviously with hydrogen, लेकिन जो कैटलिस्ट यूज होगा वो होगा metal carbonyl. Then we have stabilization of reaction intermediates. Metal carbonyl can stable the unstable or transient organic intermediates. तो ऐसे organic intermediates जो कि आमतौर पे unstable होते हैं, like this one cyclobutadiene, क्योंकि इस मॉलिक्यूल में स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होता है,
लेकिन अगर इसके साथ यहाँ पर इस पोजीशन में ये मेटल कार्बोनाइल लगा हुआ है तो ये इस मॉलिक्यूल को स्टेबल कर देगा। साइक्लोब्यूटाडाइन हैज़ नेवर बीन आइसोलेटेड एज फ्री मॉलिक्यूल के तौर पर, क्योंकि इस मॉलिक्यूल में स्ट्रेन ज़्यादा होता है, लेकिन इसको हम आइसोलेट कर सकते हैं एज एन आयरन ट्राइकार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स के तौर पर इसको आइसोलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये देखें, ये हमारे पास ये वाला मॉलिक्यूल है और इसको हम Fe2CO9 के साथ ट्रीट करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजीन at 50 degree centigrade, then we will get this product which is stable due to this iron tricarbonyl. Now we will discuss about the usage of metal carbonyl in industry. Main use of metal carbonyl are in the area of catalysis and organic synthesis. Metal carbonyls are easily decomposed and volatile, so used in deposition reaction where heating forms the metal and carbonyl. ठीक है, इसके बाद the commercially important Mond process depends on the thermal decomposition of nickel tetracarbonyl to form high purity nickel. So this is the direct application. इसको हम मॉन्ड प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं कि डिकम्पोजिशन ऑफ निकल टेट्राकार्बोनाइल की वजह से हमारे पास हाई प्योरिटी निकल हासिल होता है। इन टिपिकल वेपर डेपोजिशन प्रोसेस purified inert carrier gas is passed over a metal carbonyl containing the metal to be deposited. So these are the industrial usage of metal carbonyls. Metal carbonyls have been used as anti-knock compound in unleaded gasoline. ठीक है, तो मेटल कार्बोनाइल जो है वो ऐसी गैसोलीन पेट्रोल के फ्रैक्शन को कहते हैं और उसमें अगर लेड की मिकदार जितनी कम होती है वो उतना ही अच्छा तस्वुर किया जाता है। तो अब ये एंटी नॉक एजेंट के तौर पे मेटल कार्बोनाइल गैसोलीन में यूज़ होते हैं। ठीक है, यानी पेट्रोल को बेहतर बनाने के लिए। Alternative routes to synthetic fuels from less expensive and more abundant raw materials such as coal are being sought. ठीक है, तो जो अल्टरनेटिव रूट्स हैं सिंथेटिक फ्यूल के, उसमें मेटल कार्बोनाइल बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं। An important method of converting coal into more useful source of energy is water gas reaction. ठीक है, तो अब वाटर गैस रिएक्शन एज द नेम इंडिकेट, इसमें वाटर गैस प्रोड्यूस होती है। वाटर गैस क्या है? दिस इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। अच्छा जी, अब क्या है कि हाई टेम्परेचर ये रिएक्शन है कोल और वाटर का, जो कि हमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। राइट, तो वाटर गैस जो है फिर इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल फ्यूल के तौर पे और सोर्स ऑफ हाइड्रोजन के तौर पर ये यूज़ होता है, क्योंकि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है और ये हाइड्रोजन बनती है। द हाइड्रोजन कंटेंट कैन बी इंक्रीज्ड बाय वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन दैट इज कैटलाइज्ड बाय मेटल कार्बोनाइल। तो अब चूंकि वाटर गैस सोर्स ऑफ हाइड्रोजन के तौर पे यूज़ होता है, तो वाटर गैस के अंदर जो हाइड्रोजन कंटेंट है हम उसको किस तरह से बढ़ा सकते हैं कि वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन के ज़रिए। इसमें हम क्या करते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसको हम ट्रीट करते हैं वाटर के साथ और ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और ये वाला ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन जो है ये रिलीज हो जाएगा और इस रिएक्शन को कैटलाइज किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ दिस मेटल कार्बोनाइल Ru2CO12। अच्छा जी, अब क्या है कि रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन विच इज नोन एज सिन गैस। तो अब जैसा कि पिछली स्लाइड पे हमने देखा कि रिएक्शन की जो प्रोडक्ट थी वो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन थी। अब रिएक्शन मिक्सचर में कार्बन मोनोऑक्साइड तो प्रेजेंट है ही, तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर दें देन यू विल गेट अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, जिसको हम सिन गैस बोलते हैं, सिंथेटिक गैस भी इसको बोलते हैं। देयर इज कंसिडरेबल इंटरेस्ट डायरेक्टेड टूवर्ड्स कन्वर्टिंग सिन गैस टू सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इस सिन गैस को हम सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस इथिलीन ग्लाइकोल
ये प्रिपेयर करता है। फॉर एग्जांपल ये एक छोटा मॉलिक्यूल है जो कि हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड के रिएक्शन से पैदा होता है इन प्रेजेंस ऑफ RH6CO16। ये इथिलीन ग्लाइकोल जो है इसका फर्दर यूज है एंटी फ्रीज के तौर पर। वी नो this is produced from ethylene, which is itself a product of petroleum industry. Metal carbonyls are also important source of catalyst for the conversion of syngas into acetic acid and methanol. ठीक है, तो मेटल कार्बोनाइल जो है सिन गैस को एसिटिक एसिड और मेथनॉल की कन्वर्जन में भी कैटलिस्ट के तौर पर यूज होते हैं। मेथनॉल जो है दिस इज ऑल्सो सिन गैस ड्राइव्ड मटीरियल, ठीक है, और दिस कैन देन बी कन्वर्टेड इनटू एसिटिक एनहाइड्राइड थ्रू एसिटिक एसिड। यानी मेथनॉल जो है सिन गैस से बनाया जाता है, बनाया जा सकता है। सिन गैस ड्राइव्ड मटेरियल है, सिंथेटिक गैस विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। इसको वाटर गैस भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको फिर मेथनॉल को, ये तो रिएक्शन की चेन चलती है, हम कन्वर्ट कर सकते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड थ्रू एसिटिक एसिड। अच्छा जी, दिस इज द स्कीमेटिक डायग्राम, ठीक है। ये सारे फ्यूल्स हैं, गैस है, ऑयल है, कोल है, बायोमास है। इनकी स्टीम रिफॉर्मिंग, पार्शियल ऑक्सीडेशन या गैसिफिकेशन रिएक्शन, इससे सिंथेसिस गैस प्रोड्यूस होती है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है सिन गैस विच इज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। और ये इसका वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन है, जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं कि इस गैस को हम कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ट्रीट करवाते हैं, वाटर के साथ ट्रीट करवाते हैं, तो यानी कार्बन मोनोऑक्साइड सिन गैस को। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, हमारे पास हाइड्रोजन बच जाती है। इसको बोलते हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, दैट इज इंक्रीज ऑफ हाइड्रोजन। इसके अलावा ये एक रिएक्शन है जिससे सिंथेटिक फ्यूल प्रोड्यूस होता है। और सिन गैस जो है, जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड पे कहा कि मेथनॉल जो है वो भी सिन गैस से बनाया जाता है। तो ये मेथनॉल की सिंथेसिस शो की गई है विद द हेल्प ऑफ सिन गैस। Hydroquinone may be produced from carbonylation of acetylene in the presence of RH4CO12 as catalyst। तो ये हाइड्रोक्विनोन जो है वो भी प्रोड्यूस किया जाता है 2C2H2 प्लस 3 मॉलिक्यूल हैं ये कार्बोनाइल के, प्लस ये वाटर in the presence of RH4CO12 and tetrahydrofuran. This results in the production of C6H4OH twice plus CO2. This is hydroquinone. An interesting development in the use of metal carbonyl catalyst is the production of hydrocarbons from carbon monoxide and hydrogen. This we have already studied. कि small molecule hydrocarbons जो हैं बनाए जाते हैं from carbon monoxide and hydrogen. The reaction of carbon monoxide and hydrogen in molten solution of sodium chloride and AlCl3 with IR4CO12 as catalyst, this will yield a mixture of hydrocarbon. और इस रिएक्शन की जो मेन प्रोडक्ट है वो होती है ईथेन विच इज इटसेल्फ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। So this was about the usage of metal carbonyl in organic synthesis and industry. Thank you very much for watching this lecture. Please subscribe, like and share. Allah Hafiz.